کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو جماعت اسلامی کے شہر کے 11 مقامات پر مظاہرے۔ لیاقت آباد، گلستان جوہر، آئی چندری گر روڈ، اورنگی ٹاؤن، ملیر، ہالٹ، نارتھ کراچی میں بھی عوام سڑکوں پر آ گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے ایک بار پھر کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ تفصیلات دورہ شہوار کی اس رپورٹ میں جانیے۔ کراچی کی عوام لوڈ شیڈنگ سے پریشان، جماعت اسلامی پھر کے الیکٹرک کے خلاف میدان میں آ گئی۔ شہر کے 11 مقامات پر مظاہرے، کے الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بن قاسم، لیاقت آباد، گلستان جوہر، لیاری، ماڑی پور میں احتجاج، آئیہ چندری گر روڈ، اورنگی ٹاؤن، ملیر ہالٹ، نارتھ کراچی میں بھی عوام سڑکوں پر آ گئے۔ شہری اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی مظاہروں میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی کراچی لیاقت آباد میں مظاہرین کے درمیان پہنچے۔ منم ظفر نے ایک بار پھر کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ دہراتے ہوئے بولے، یہ شیطانی گٹھ جوڑ ہے جو حکمرانوں کے اشتراک سے چل رہا ہے۔ حکومت میں شامل تمام افراد اس لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں۔ کراچی میں 18 گھنٹے بجلی نہ ہو، یہ کسی صورت تسلیم نہیں۔ وہ کہ الیکٹرک جو کراچی کے لوگوں کو اجتماعی صدا دے رہی ہے کہ کراچی کا 50% سے زائد علاقہ آج بھی بجلی سے محروم ہے۔ 12 گھنٹے سے لے کر 18 گھنٹے بجلی موجود نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور کے الیکٹرک اس سارے ظلم کے اندر برابر شریک ہے۔ کراچی کے لوگوں کی زندگی وزیرن کی بھی ہے، جو صوبہ سندھ میں حکومت براجمان ہے، 17 سال سے وہ وفاق کا بھی حصہ ہے۔ ٹاؤن چیئرمین لیاقت آباد فراز حسیب کا کہنا ہے کہ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو جماعت اسلامی بھرپور تحریک چلائے گی۔ ہم احتجاج کریں گے اور سڑکیں بند بھی کریں گے۔ ہم نے کے الیکٹرک کے اعلیٰ کام سے بات کی اور ان سے کہی یہ بات کہ اگر آپ کے لائن لاسز کا مسئلہ ہے، آپ کی بلنگ کوئی نہیں کرتا تو آئے بیٹھے ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، لیکن وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر بات کی جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں۔ مظاہروں میں جماعت اسلامی کے مقامی قائدین بھی شریک تھے۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ دورہ شہوار، سٹی 21 نیوز۔ عید قرباں کی آمد۔ ناردرن بائی پاس دوست مویشی منڈی میں بیپاریوں اور گاہکوں میں نوک جھوک جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے مبشر حسین سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ میں اس وقت ناردرن بائی پاس دوست مویشی منڈی میں موجود ہوں اور 5 روز رہ گئے ہیں عید قربہ میں، اور شہریوں کا جو ہے وہ رش اس طریقے سے رواں سال کے مناسبت سے جو ہے وہ کم دکھائی دے رہا ہے۔ میں کیٹل فارم میں ہوں، میرے ساتھ بیوپاری ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا کہ پچھلے سال کے نسبت اس سال مارکیٹ کیا ہے اور آپ کے کتنے جانور ہیں، کیا ڈیمانڈ ہے؟ بھائی پچھلے سال کی بنسبت اس سال جو ہے وہ جانور لینے والے جو گاہک ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اس کا مقصد اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک منڈی والا جو کانٹریکٹر ہے اس نے ریٹ بہت بڑھائے ہوئے ہیں، پلاٹ سارے وہ بیچ رہے ہیں، اور پانی کا مسئلہ ہے۔ ایک ڈرم اگر ہم پانی کا لے رہے ہیں وہ پچھلے سال اگر ہمیں 500 کا ملا تھا، اس بار 700 سے 800 روپے میں مل رہا ہے۔ پینے کا پانی جو 20 لیٹر کا ہے وہ 250 روپے میں مل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ مہنگائی زیادہ ہے، جانور پیچھے سے بھی مہنگے ملے ہیں، اور دوسرا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ جانور پیچھے ہمیں مہنگے مل رہے ہیں۔ یہاں پہ جو دام ہم لگا رہے ہیں، جو پیچھے سے خریدا گئے ہیں اس سے بھی کم لوگ دام لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے کم جانور خرید رہے ہیں۔ جی ان کا کہنا ہے کہ رواں سال کی مناسبت سے جو ہے وہ شہریوں میں قوت خرید جو ہے میں خاصا کمی ہے، اور ان کو دیگر بھی مبینہ طور پر انتظامیہ کی جانب سے وہ سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی جس میں مویشیوں کا چارہ ہو، ساتھ پانی ہو۔ تو ان کا مطالبہ ہے کہ اگر یہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ یہ بنیادی چندی روز میں جو ہے وہ مسائل حل کرے گی، اس کے بعد ممکنہ طور پر ہم اپنے مویشی کو مناسب داموں میں جو ہے وہ فروخت کریں گے، اور یہی قیمت جو ہے وہ شہریوں کی قوت خرید میں آئے گی تو وہ عید قربہ کو جو ہے وہ منائیں گے۔ جی
ईद कुर्बान की आमद कुर्बानी के जानवर बन गए हैं सबकी तवज्जो का मरकज़। कहीं बैलों की शान तो कहीं दुम्बों की आओ भगत ने सबको हैरान कर दिया। कुर्बानी के लाडले जानवरों के नाज नखरे भी आसमान को छू रहे हैं और इनके लिए मखसूस चारा, मेवाजात और खुराक का अहतमाम भी शाही अंदाज में हो रहा है। चारे की दुकानों पर ख़रीदारों का रश देख कर यूँ लगता है कि जैसे किसी त्यौहार की शॉपिंग हो रही है। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और गली मोहल्लों में जहाँ पर कुर्बानी के जानवरों का सिलसिला जारी है वहीं पर उनके नाज़ो नखरे भी उठाए जा रहे हैं। और सबसे ख़ास बात जो है कि जानवर के खुराक का ख़ास ख्याल रखा जाता है, खाने का ख्याल रखा जाता है। और इस वक्त भी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा रश है, लोग चारा ख़रीद रहे हैं, कोई पट्टे ख़रीद रहा है, कोई दाना ख़रीद रहा है, कोई भूसी ख़रीद रहे हैं। और क्योंकि जो गायें हैं वो अलग तरह का खाना खाती है, बकरे अलग तरह का खाना खाते हैं। और अब क्योंकि बकरा ईद में दिन कम बाकी रह गए हैं और कम दिन में हर किसी की यही कोशिश और ख्वाहिश होती है कि क्यों ना जानवरों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए, उनकी देखभाल की जाए। तो यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, बकरा ईद करीब है, जानवरों का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, ख़ास तौर पर उनके खाने का ख्याल कितना है? खाने का अच्छा ख्याल रखना चाहिए और जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा होना चाहिए उनके लिए। तो क्या क्या ख़रीदा है अभी आपने? अभी तो मैंने चारा वगैरह ख़रीदा है, लूसन ख़रीदा है और बूसी वगैरह ख़रीदी है, ये सब लिया है। और बिल्कुल मेरे कैमरामैन रमीज़ दिखा सकें तो इस वक्त भी यहाँ पर जानवरों की जो खाने पीने का इंतज़ाम है, उनकी खुराक का उस हवाले से यहाँ पर रश है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और लोग जान रहे हैं। और इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कहीं पर चारा काटा जा रहा है, कहीं पर पट्टे काटे जा रहे हैं। तो इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, ईद कुर्बान आते ही जो रौनकें हैं किस तरह से देख रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये है कि पिछले साल से कम है पर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। क्या कौन से ऐसे जानवरों के खाने हैं? गायें क्या खाना पसंद करती है, बकरे क्या खाते हैं, कौन से ऐसे खाने? हमारे पास हलाल हर किस्म का जानवर जो है उसका दाना मौजूद है, गाय का, ऊंट का, बकरे क्या क्या खाते हैं? कुछ दानों के नाम? गाय में है कुत्तर है, उसके बाद भूसा होता है, अट्टी, खल, छिलका, चोकर, दलिया गाय का ये है, बकरे का मिक्स दाना होता है और जंतर होता है, ऊँट का अलग से गवात्री आती है, दाना होता है। हाँ बिल्कुल जी, हर जानवर का अलग खाना होता है। और यहाँ पे मौजूद और लोग से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, बकरा ईद करीब है और हर कोई चाहता है कि कुर्बानी के जानवरों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए। किस तरह के खाने खाते हैं, कुर्बानी के जानवरों के खुराक का कितना ख्याल रखते हैं? भाई ये खसूसी महीना होता है जो जानवरों के लिए ख्याल किया जाता है दिल से। तो जो हमारे बकरे हैं वो तो जंतर खाते हैं शौक से। अच्छा। तो हम इधर आते हैं, फ्रेश मिलती है इस वक्त। तो जानवरों के भी नखरे होते हैं, इंसानों की तरह नहीं होते? इंसानों से ज़्यादा उनके नखरे होते हैं। अच्छा जी। और खाली इंसान ही नखरे नहीं करते बल्कि जो जानवर होते हैं वो भी ये खासा नखरे करते हैं। बकरे की खुराक कुछ और है, गाय की खुराक कुछ और है और हर कोई चाहता है कि कुर्बानी के जानवर की खूब सेवा की जाए, तो इसलिए उसके खाने का इंतज़ाम भी करते हैं। कोई यहाँ पर कुत्तर ख़रीद रहा है, कोई दाना ख़रीद रहा है, कोई भूसी, कोई जंतर ख़रीद रहा है। और इस वक्त भी यहाँ पर आवाम का अच्छा खासा रश है और लोग जानवरों की खुराक का इंतज़ाम कर रहे हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नॉर्थ कराची के सेक्टर 7D2 और 3 में पानी की किल्लत का मसला पहले ही मौजूद था। अब सीवरेज का निज़ाम भी उबल पड़ा है, जिसके बायस इलाके की गलियां गंदे पानी में डूब चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तोहा सलीम के दौरे एडमिनिस्ट्रेशन में ज़िला वस्ती के 100 से ज़ायद पार्क्स को बहाल किया गया। उनमें शामिल है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 का नदीम सरवर पार्क, जो कुछ माह कबल दोबारा तामीर किया गया मगर एक बार फिर वीरानी की तस्वीर बन चुका है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। दावे हरियाली के लेकिन ज़मीनी हकाइक कुछ और। नदीम सरवर पार्क में टूटे झूले और मवेशियों का बसेरा। 2 बार तामीर के बावजूद पार्क फिर से उजड़ गया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 के नदीम सरवर पार्क को अपनी लोकेशन के बाइस इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है। तमाम पार्क दोबारा तामीर होने के बावजूद इंतजामी गफलत के बाइस मुसलसल जवाल का शिकार है। पार्क में तैनात अमला गायब और बहाली के दावे सिर्फ कागजों तक महदूद दिखाई देते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि ये पार्क बच्चों की तफरीह का वाहिद जरिया है, लेकिन झूले टूट चुके हैं और पार्क मवेशियों की चरागाह बन चुका है। ये 2 दफ़ा इनको बनाया पार्क को, लेकिन दोनों दफ़ा मसला है कि जिसकी देखभाल नहीं होगी तो उसके बाद उसका यही हाल होना है। यहाँ सिर्फ मशीन बनाया हुआ इसको कि पैसा लगाए जाओ और उसके बाद 6 महीने बाद उसको ख़त्म कर दो पार्क को, फिर 6 महीने बाद उस पार्क को बना दो। यहाँ हर 6 महीने बाद ये इसको बनाते हैं
कोई होता नहीं है नज़ारा देखने के लिए, तो वो दोबारा उजड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। देखिए झूले तमाम टूट चुके हैं, सब अब यहाँ पे पूरा सब पौधे वौधे काट दिए हैं। ये हमारे लिए झूले बना दें आप, हम खेलेंगे, पौधे लगा दें और ये पार्क को अच्छा सा बना दें, फिर हम खेलेंगे इधर, झूले वूले झूलेंगे। पहले बहुत अच्छा बना हुआ था, यहाँ पर झूले लगे हुए थे, घासें थी, अब सब हटा दिया, गाय बंधी हुई हैं। अभी अगर ये बना दे, एक झूले वूले लगा दे, हमारे खेलने के लिए बहुत बेहतरीन बन जाएगा ये। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए जहां हरियाली को फ़रोग़ देने की बात की जा रही है, वहीं गुलबर्ग टाउन इंतज़ामिया की गफलत पहले से मौजूद हरे भरे पार्क्स को भी उजाड़ रही है। नदीम सरवर पार्क की हालत बताती है कि दावे कुछ और, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची चैम्बर का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम को मुल्क भर में नाफिज करने का मुतालबा। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफीन का कहना है कि फेसलेस सिस्टम ने ताजरों के लिए कारोबार को तेज़, आसान और शफाफ बनाया है। इंसानी मुदाखलत ख़त्म होने से बदउनवानी में वाज़ेह कमी आई है। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। असेसमेंट सिस्टम से कारोबार तेज़, शफाफ और आसान हो गया। कराची चैम्बर ने हुकूमत से मुल्क गिर निफाज की अपील कर दी। सदर के CCI ज़ियाउल आरिफीन ने कहा कि FCA सिस्टम ने बददियानत अनासिर को बेनकाब किया है, जिससे अंडर इनवाइसिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद का पर्दाफाश हुआ है। फेसलेस सिस्टम जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। सबसे पहले कराची चैम्बर ने इस चीज़ का मुतालबा की गया था और वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद दी जब इन्होंने इनाग्रेशन करी। पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे चल रही है। आपको ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना है, डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है। आप हर चीज़ देखें कि एक ऐप के ऊपर चल रही होती है। सदर के CCI ने कहा कि इंसानी मुदाखलत कम होने से बदउनवानी में वाज़ेह कमी आई है, जबकि FCA सिस्टम की बदौलत कस्टम्स क्लियरेंस का वक्त भी कम हुआ है, जिससे कारोबारी अफराद और ताजिरों के लिए सहूलत बढ़ी है और क्लियरिंग एजेंट्स पर NSR कम हुआ है। अगर इस सिस्टम में कोई खामियां मौजूद हैं तो उन्हें दूर किया जा सकता है। अगर मेरी नज़र में काफ़ी लोग मुतमईन हैं और काफ़ी हद तक लोगों को आसानी हो गई है कि वो उनको कस्टम हाउस में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटलाइज सिस्टम है, फिर ये भी है कि कितने घंटों के अंदर वो चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इसमें जो फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ से वो खुश हैं। ज़ियाउल आरिफीन ने हुकूमत से अपील की कि नए सिस्टम को जल्द अज जल्द मुल्क भर में नाफिज किया जाए ताकि पूरे मुल्क में कारोबारी अमल को शफाफ और तेज़ बनाया जा सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बंदरगाहों की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़े ख़त्म कराने के लिए इंसदाद तजावज़ात फ़ोर्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार कहते हैं कि ये फ़ोर्स मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल हम आहंगी में काम करेगी। वज़ीर बराए बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी की ज़र सदारत इजलास में पोर्ट कासिम अथॉरिटी और कराची पोर्ट ट्रस्ट के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में ज़मीन इस्लाहात के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। पोस्ट कासिम हुकाम ने मास्टर प्लान के तहत डिजिटल लैंड ऑटोमेशन सिस्टम मुतारिफ कराने का मंसूबा भी पेश किया है। शहर से वॉल चॉकिंग के खात्मे के लिए मेयर कराची मुतहरिक मेयर कराची ने मुख्तलिफ शाहराहों से वॉल चॉकिंग के खात्मे की तस्वीर ट्वीट कर दी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ट्वीट में कहना था कि शहर से वॉल चॉकिंग का खात्मा किया जा रहा है। शहरी वॉल चॉकिंग के खात्मे में हमारा साथ दें।